नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करने की बड़ी खबर के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर की। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली हायर बेंच को भेज दिया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन उन पर केस चलता रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, लेकिन मुकदमा खारिज नहीं हुआ है। इस कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। Can you explain in English about this? The CBI bail is still pending, so until or unless he was granted bail in that, he will remain in custody till that time. This is a victory. This is a great judgment, and it is a very historical judgment. भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी। No, the court basically observed that insofar as his arrest is concerned, there are certain aspects on necessity of arrest, whether it was necessary or not, legal aspects, which have to be examined by a larger bench. So they have not finally pronounced on that. But they said Mr. Kejriwal has undergone a large period of incarceration already. He has stayed in jail and therefore directed his release on bail immediately in the Enforcement Directorate matter. So therefore the question is, ED arrest under the Prevention of Money Laundering Act, that is PMLA. There is a section 19 which has a certain threshold of arrest, which is like you have to have a prima facie, you have to have a view that the person is prima facie guilty. Now in addition to that, is there a requirement of a necessity of arrest, which is a classical, under classical criminal law, that is a requirement. Does that also superimpose itself on the section 19 requirements, is a question that the court has referred to a larger bench, which a larger bench will decide. Will Mr. Kejriwal be released today? No, so in the ED matter, he's been released now. But as you are aware, after the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. So now in the CBI matter, although the allegations effectively overlap in both of them, because in fact the ED argued the CBI's case also. But nevertheless, technically there is a separate case which exists. That also bail petition has already been moved in the High Court, and that bail we should, its hearing is on 17th of this month. And that is not a merits bail, it's a standard bail. Unlike section 45 PML, there is no requirement of assessing the matter on merits and then only rejecting or accepting a bail. So we will see what happens in that, but after this we are quite optimistic that since that is not a merits bail, he should even in the CBI matter get released very soon. तो वही जमानत के बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखेंगे मोदी जी। पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है। ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सब मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है, तानाशाही मुर्दाबाद। वहीं अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के मामले को लेकर दिल्ली के मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा आतिशी ने, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। रोज एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, और एक बार नहीं बार बार कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी इस केस में
एक बायस के साथ एक्ट कर रही है। ये कोर्ट के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के मुकदमे में जमानत दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वहीं केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल को लेकर सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दिवाकर दत्ता की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों से पहले अपना ऑर्डर रिजर्व किया, उसको आज उन्होंने सुनाया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल थे कि अगर ईडी पीएमएलए एक्ट के अंडर सेक्शन 19 अरेस्ट करती है और अंडर सेक्शन 45 कोर्ट उसके अंदर बेल की बात सोचता है, तो सेक्शन 19 के अंदर जब ईडी जो एक एजेंसी है वो अरेस्ट करती है तो उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई तय सिद्धांत नहीं है किस पे वो अरेस्ट कर रहे हैं और वो सेक्शन 19 बेसिकली उन अफसरों की ओपिनियन है। तो बेल के सिद्धांत ये है कि अगर बेल मिलना किसी कानून के अंदर कठिन है तो उसके अंदर अरेस्ट का थ्रेशोल्ड भी हाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीड एंड नेसेसिटी ऑफ बेल के बारे में कहा, इसलिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कूद रहे थे कि साहब वो उनके ऊपर मुकदमा हो गया, वो अरेस्ट हो गए तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वो हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट में भी यही बात कही और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं कर सकता। ये बात आपके सामने रखी और मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो इस केंद्र सरकार के अत्याचार से पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और खास तौर पे पीएमएलए के कारण उनके ऊपर अलग अलग मौकों पे अत्याचार किया जा रहा है। देखिए बार बार पहले सुप्रीम कोर्ट में इंटरिम बेल दी, पीएमएलए में मिलती नहीं है, फिर लोअर कोर्ट में न्यायमूर्ति जी ने उनको बेल दी, अब देश की हाईएस्ट कोर्ट में उनको इंटरिम बेल दे दी। आप इस बात को समझिए, जैसे ही न्यायमूर्ति जी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल दी थी, ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई थी कि अब कोई बहस पानी है, अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए सीबीआई जो है रातों रात अरविंद केजरीवाल के यहां गई, तिहाड़ के अंदर उनको उन्होंने अरेस्ट किया, 2 दिन के लिए फॉर्मेलिटी के लिए 3 दिन की उनकी जो है इंटरोगेशन करी
और जो है ये कह दिया कि जी इन्होंने सीबीआई को अरेस्ट कर रखा, सिर्फ इसलिए कि कहीं गलती से अरविंद केजरीवाल जी की बेल सुप्रीम कोर्ट में हो गई तो उनको उसके बाद भी जो है जेल में रखा गया। बट मैं मानता हूं पीसी एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है, वो मोटे तौर पर सीआरपीसी से गवर्न देता है, जिसके अंदर बेल इज ए मैटर ऑफ राइट। इस सीबीआई की बेल के अंदर सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कि इनको जेल में क्यों रखना है। वहीं केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा बीजेपी के नेताओं ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। अगर दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत बना है। पुनः आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी प्रेयर थी कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सील ऑफ अप्रूवल लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आईओ उनको अरेस्ट कर सकते थे। ये जो इंटरिम बेल मिली है ये बस इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को भेजा गया है। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं अनलेस वो फाइल उनको एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है। तो पुनः कहूंगी कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। हाँ, एक इशारा जरूर मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो ये कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी यानी जैसे केजरीवाल जी हो गए, वो एक अभियुक्त के तौर पर एक स्कैम में लिप्त होते हैं तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए। पर क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तो सत्ता के मुंह में मदमस्त है और दिल्ली की जनता उनकी इस जिद के कारण त्रस्त है। इंटरिम बेल कोई किसी जो किए हुए क्राइम से राहत नहीं होती है। इंटरिम बेल होती है कि जब तक केस चल रहा है वो जेल से बाहर रह सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी इंटरिम बेल का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं किया है, वो स्कैम में नहीं है। तो इंटरिम बेल अपने आप में क्वेश्चन खड़ा कर रही है कि हाँ दोषी है, लेकिन क्योंकि दिल्ली की जनता भुगत रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस बात को मानते हुए उन्हें बाहर रहकर अपना काम करने की इजाजत दी है, लेकिन उन्हें स्कैम के घोटाले से मुक्त नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है, परंतु कोई मुकदमा खारिज हुआ। मुकदमा उनके खिलाफ चलेगा, भ्रष्टाचार का मामला उनके खिलाफ है। ईडी और सीबीआई के पास सबूत है और सबूतों के आधार पर मुकदमा चलेगा। ये माननीय न्यायालय का निर्णय है। माननीय न्यायालय का संवैधानिक संस्था के निर्णय को हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन जब माननीय न्यायालय सजा देती है तो आंदोलन करने वाले, और जब जमानत देती है तो ढोल बजाने वाले, ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोगों से पूछना चाहिए कि जिनको संविधान में विश्वास नहीं है और संविधान को लेकर के जनता को भरमाते थे, चुनाव में संविधान के नाम पर वोट प्राप्त करने का जो खेल खेले हैं, उन संविधान विरोधी मानसिकता से पूछिए कि जब माननीय न्यायालय का निर्णय होता है तो उसको स्वीकारने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। जमानत भी वही देता है, सजा भी वही देती है, इसमें एनडीए गठबंधन की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन जनता को बरगलाने का खेल ये लोग खेलते हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, समाज को लड़ाने वाले, देश को कमजोर करने वाले मानसिकता के लोगों को माननीय न्यायालय नजर रखती है।
राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी आज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पहुंचकर बीजेपी जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता और कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान पूर्व मंत्री की राजस्थान सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट को आमजन के लिए हितैषी और समावेशी बजट बताया है। और क्या कुछ कहा पूर्व कृषि मंत्री ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जी मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। सर देखिए, कल बजट पेश हुआ, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? राजस्थान सरकार का जो कल बजट पेश हुआ है वो इस प्रकार का बजट है, समावेशी बजट है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के विकास का रोडमैप है। किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में 4 लाख 5 साल में नौकरी देने की जो बात की गई है, एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और बजट की जो खास बात ये रही है, किसानों के हित में 650 करोड़ रुपए का राजस्थान कृषि विकास योजना के नाम से एक नई स्कीम लॉन्च की। वो इस बात को साबित करेगी कि जिन योजनाओं में केंद्र से राज्य सरकार की जहां लाभ नहीं मिल रहा हो या जहां कवर नहीं हो रहा हो, इस योजना के अंतर्गत उसका लाभ मिल सकेगा। 5000 डिक्की की जब बात आई है, सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है, ERCP की बात जो हुई है वो वास्तव में एक विकास का कृषि क्षेत्र में एक आईना के रूप में देखा जा सकता है। और हमारे वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो हुआ है, वो इस बात का संकेत देता है कि राजस्थान की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन 2047 का जो विजन है, उस विजन की छाया इसमें प्रकट होती है। हम एक लॉन्ग टर्म के आधार पर बजट आया है और हमारा सबका प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का, कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए सर, बात करें करनी कथनी, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कर रही निराशाजनक बजट बता रही है, इसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले तो कांग्रेस को आशा और निराशा को समझना पड़ेगा। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में वित्तीय अनुशासनहीनता में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को कर्ज के बोझ के नीचे दबाया। 5 साल तक पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है। मुख्यमंत्री अपने आप को ऐसा ही मानकर सरकार बचाने में लगा रखा, सरकार चलाने पे कोई ध्यान नहीं रहा। और आज वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार किसानों का सम्मान करती है, अपमान नहीं करती। कांग्रेस ने 55 साल तक देश में राज किया और राजस्थान में भी कांग्रेस ने राज किया, लेकिन किसानों की बहुबूदी के लिए, किसान के विकास के लिए, आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं। इसलिए उनका जो विरोध और जो बात कर रहे हैं वो निराशाजनक बातें, उनकी कोई आधार नहीं उनका इस बात की कहने का। हमारा बजट हर क्षेत्र को प्रगतिशील बनाने के लिए हम लोगों ने उसका पेश किया है। देखिए सर, बात करें आगामी दिनों में उपचुनाव है, किस तरीके से आप उपचुनाव को देखते हैं? देखिए, उपचुनाव 5 जगह राजस्थान में हो रहे हैं और 5 जगह हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों को सही बात का आकलन करने के लिए कोई प्रभाव, दबाव, अभाव के कारण से हमको टिकट नहीं बांटने। स्वभाव के कारण से पार्टी जीतने वाले लोग, अच्छी छवि के लोग, अच्छे कर्मठ लोगों को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी और हम भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर चुनाव जीत के हम लोग आएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रभुलाल सैनी जी, जिनका कहना है कि आगामी दिनों में जो उपचुनाव होंगे उसमें भाजपा जीत दर्ज करेगी। कजोड़ गुजर इंडिया वाइज स्टॉक। वहीं सब्जियों के बढ़ते दाम से आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। टमाटर समेत अन्य सब्जियों की कीमत में हुई बढ़ोतरी से लोगों की थाली से सब्जियां गायब होने लगी हैं। व्यापारियों का मानना है कि बारिश के चलते सब्जी की फसल बर्बाद हुई है। इसी वजह से कीमतों में भी तेजी आई है। पिछले कुछ दिनों में मौसम में आए बदलाव और निर्यात कम होने के कारण कई सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं। इंडिया वॉइस की टीम ने सब्जी बाजार पहुंचकर आम जनता से सब्जियों के बढ़ते हुए दाम पर उनकी राय पूछी। देखिए रिपोर्ट।
सब्जियों के दाम में जो है बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है, जिससे आम जनता काफी परेशान है। और इस समय इंडिया वाइज की टीम जो है सब्जी बाजार में है, यहाँ पे आम जनताओं से भी राय ले रही है कि सब्जियों के दाम में जो है अचानक जो वृद्धि आई है। टमाटर जो है 100 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि इससे पहले जो है टमाटर 10 से 20 रुपए किलो बिकता था। आलू 25 रुपए किलो थी, आज 40 से 50 रुपए में बिक रही है। वही तुरई 10 रुपए किलो थी, आज तुरई जो है 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। मिर्चा जो है 10 रुपए में 250 ग्राम मिलता था, आज 20 रुपए मिल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि सभी सब्जियों के दाम में जो है अचानक वृद्धि आई है, इससे आम जनता पे काफी महंगाई का बोझ पड़ा है। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे सब्जियों के दाम में अचानक वृद्धि क्यों? सब्जी तो बहुत महंगी हो गई है सर। सब्जी आज के 10-15 दिन पहले वो सब्जी का दाम, जैसे टमाटर है, आलू मतलब आलू भी है, कोई भी है, मतलब क्या रेट है आज क्या रेट? आज का रेट ये 100 रुपए किलो टमाटर है सर। 100 रुपए किलो टमाटर है, 60 रुपए किलो। इससे पहले तो 10-15 दिन पहले मतलब जो 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, बहुत अच्छा टमाटर अगर था तो वो 20 रुपए किलो है, और वो 10 रुपए किलो था। तुरई तो 60 रुपए किलो। इससे पहले क्या? इससे पहले वही 10-20 रुपए किलो थी अच्छी तरुई। महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत ज्यादा आसमान छू रही है महंगाई। हम लोग जो छोटे आदमी वो परेशान हैं। क्या वजह है जो अचानक जो है महंगाई आई? अरे क्या वजह है, ये बारिश के ये चलते समय से सब्जियां सब सारी जो है खराब हो चुकी है। बाहर से भी नई माल आ रहा है, जो किसान लोग, बड़े बड़े किसान लोग बाहर में जो है वो सब गाड़ियां सब रुकी पड़ी है, इसीलिए महंगाई बढ़ी है। क्या नाम है? हमारा नाम अशोक मौर्य। तो यहाँ पे जो अशोक मौर्य है, उनका साफ तौर पे कहना है कि 15 दिन से पूर्व जो थी सब्जियों के दाम में काफी कमी थी, लेकिन अचानक जो है वृद्धि हो गई है और सब्जियों के सभी दाम बढ़े हुए हैं, चाहे वो भिंडी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे तुरई हो, चाहे आलू हो, सभी में वृद्धि बढ़ी है। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या कहें? बहुत ज्यादा वृद्धि है, ये बरसात न बहुत ज्यादा वृद्धि है। आलू 40 रुपया है, मिर्चा 25 रुपया है, तो हर चीज की महंगाई हो गई। तो क्या करेंगे किसान लेकर के? तो आम जनता परेशान है, आम जनता तो बहुत ज्यादा परेशान है। आम जनता तो क्या करे, कहाँ से? इससे पहले भी महंगाई से परेशान थी, अब सब्जी भी महंगी हो, सब्जी महंगी है। इससे ज्यादा पहले परेशान आवे भाई, अब हो जाता है ये तो खाना है तो लेने हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी हैं, उनका ये भी यहाँ पे कहना है कि जो वृद्धि हुई है सब्जियों में भी महंगाई छा गई है। जहाँ पे लोग जो है 100 रुपए में झोला भर जाता था, वही अब 500 रुपए में भी उनका झोला नहीं भरता है। तो इस साफ तौर पे माना जा रहा है कि महंगाई जो है इस समय चरम सीमा पे है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं। सब्जियों के दाम में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। पहले टमाटर जो है 20 रुपए 30 रुपए किलो मिलता था, आज 100 रुपए किलो मिल रहा है। तोरी का रेट आप अगर ले लीजिए तो पुराना रेट 15 से 20 रुपए था, आज 40 रुपए किलो मिल रहा है। हरा मिर्चा 10 रुपए पाव था, जो आज 20 रुपए मिल रहा है। ऐसा सारी हरी सब्जियों का रेट बढ़ चुका है। भिंडी का भी रेट जो है वो काफी बढ़ चुका है। पहले 20 रुपए में था, अब जो है भिंडी 45 रुपए और 50 रुपए में मिल रही है। इस तरह से हरी सब्जियों का रेट बहुत सारा बढ़ गया है। तो महंगाई कमर तोड़ रही है। महंगाई कमर क्या बहुत ज्यादा कमर तोड़ रही है। किसान के पॉकेट पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। गरीब आदमी सब्जी हरी सब्जी खाने में असमर्थ है। क्या नाम पता? मेरा नाम अमर बहादुर सिंह है। तो उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे दादा, सब्जियों में कितनी महंगाई है? बहुत बड़ी महंगाई है भैया। कद्दू 40 रुपए किलो है, तरोई 40 रुपए किलो है, प्याज 40 रुपए किलो है। अचानक कितने दिनों से वृद्धि आ गई? ये अचानक लगभग 15-20 दिन से। यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी यहाँ पे कहना है कि जो सब्जियों के दाम है अचानक 15 दिन बढ़ गए हैं, और वजह यह मानी जा रही है कि जो बारिश का मौसम चल रहा है उसकी वजह से जो है सब्जियों के दाम में 2 गुना वृद्धि हो गई है। आम जनता की कमर टूटती हुई नजर आ रही। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।